جی ملک صاحب ماسک پہن لیں ملک صاحب. تھینک یو. عادت نہیں رہی نا ایسی چیز رکھنے کے بعد تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. اینی وے تھینک یو مسٹر چیئرمین فار گیونگ می ٹائم. میں سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ ادا کروں گا, پورے ہاؤس کا شکریہ ادا کروں گا, اپنی انٹیریئر کی کمیٹی کے ممبران کا شکریہ ادا کروں گا, اور پوری سینٹ کی سٹاف کی جنہوں نے ان کرونا کے دنوں بھی میٹنگیں جاری رکھی, اور دیٹ واز یور ڈائریکشن, اور وہ سارا ڈے ٹو ڈے وہ بریفنگ میں بہتر رہا. کاش محسن عزیز صاحب یہاں ہوتے تو ان کو میں بتا سکتا کہ اس کمیٹی نے کتنا کام کیا. ہیونگ سیڈ سو سر, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت لڑائی کا وقت نہیں ہے. کورونا کو ایک پلیٹ فارم نہیں بنانا چاہیے کسی قسم کی سیاسی لڑائی کا. کل میں اپنے دوست قریشی صاحب کو جب سن رہا تھا پرسوں, تو مجھے ایسے لگا کہ کورونا ہیز بین سیٹ اے پلیٹ فارم فار الیکشن. فار گاڈ سیک لیٹس اسٹاپ اٹ. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ڈیڈلی ڈیزیز. سر اس کا ٹوٹل وزن دنیا میں اس وقت according to this book which I have written and is verified 1 گرام ہے صرف پوری دنیا میں. اس کا 1 ٹریلین جو 72,000 مالیکیول ایکٹ کرتے ہیں باڈی میں, اور that's what it troubles you and it destroys you 3 trillion. آج پتا چلا آپ ڈاکٹر بھی ہیں سر. ماشاءاللہ. سر جو ایف آئی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جب تک سیکھے نہیں انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. اینڈ یو نو اٹ ویری ویل سر. جی ٹھیک ہے جی. You know it very well, sir. Now, 3 trillion good virus in your body is destroyed by this virus, and it's not necessary that it's going to depress your respiratory system. It can go and into your body and clot it. It can clot your blood. The doctor, Ashraf Saab is here, many other doctors here, they will nose me out. And it can make a sudden heart attack. آپ نے اپنا بات کے ڈاکٹر کو دیکھا کہ شام کو ان کو پتہ لگتا ہے, صبح ہی ڈائز. وائی ہی ڈائز؟ بیکاز آف دی سڈن اٹیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیماری کا جو اس وقت تک پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ڈسٹنس, سوشل ڈسٹنس, آئی ایم سوری ٹو سے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی کہ what is the definition of the lockdown. بابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بابر آن صاحب, he knows what is lockdown in law. When you say lockdown, that means it is lockdown. If somebody is that side, he can come this side, and this side cannot go on that side. Unfortunately, جو اس وقت حالات و واقعات ملک میں چل رہے ہیں, غربت بھی ہے, اور جیسے شہری نے کل کہا تھا پرسوں کہ جان عزیز ہے, آپ حفاظت کر رہے ہیں, ان کی کرنی چاہیے, بہت اچھا کام ہے. اگر اس کی زندگی ہوگی تو اس کو پیسے دیں گے نا. سب سے پہلا کام جو ہونا چاہیے تھا, جس کا میں ایک ریزولوشن کی صورت میں پیش کر چکا ہوں یہاں, غریب کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے, ایک ظلم ہے. میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ وہ فوراً اس کی انویسٹیگیشن کریں, کیونکہ صرف جو یہ ٹیسٹ ہے, ٹیسٹ جو کٹ ہے, it is only $7.5. It can be brought here, sir. It costs less than 2,000. I request the minister sitting here, please get this investigated. If you want millions of kits, I'll get you. I will not get any commission. I will not allow anybody to have commission. Make a committee, and it will be here, sir. 2,000 سے less اگر لاتے ہیں تو سر اگر آپ 2 کروڑ کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کے ٹوٹل 1.5 ملین خرچ ہوتے ہیں ڈالرز. اب مجھے بتائیں سر کہ آپ نے غریب کو بچا لیں گے, اس غریب کو جو 8,500 خرچ نہیں کر سکتا. ایک ویڈیو میں نے آپ کو بھی بھیجی تھی, شیئر کر سکتا ہوں, کہ ایک بہت بڑے ہال میں لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں جاتے ہیں چکتائی سینٹر سے جا کے سرٹیفکیٹ لو, آپ کو جانے دیں گے. سر دس از ڈسکریمنیشن. سب سے پہلے حق جو ہے ٹیسٹ کا وہ غریب کا بنتا ہے, کیونکہ اس کو آپ بچائیں گے, اللہ بھی خوش ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمبینیشن کٹھی چلنی چاہیے, اور وقت یہ ہے کہ ہمیں
उनको मायूस किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। एक मेरा रेजोल्यूशन है कि गरीब को हर सूरत फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होना चाहिए, और हमें आज आपकी रूलिंग चाहिए मिस्टर चेयरमैन, अदरवाइज वी विल लुक बिजी डूइंग नथिंग। अगर आप कोई क्वालिटेटिव चीज आज नहीं लाते तो लोग कहेंगे ये बातें करके चले गए। मैंने भी तकरीबन अच्छी कर ली, शहरी रवान ने भी कर ली, अभी थोड़ी देर बाबर रवान साहब भी फर्स्ट क्लास करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त शाह अपने मुशाहिद साहब भी करेंगे। बट व्हाट इज द आउटकम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन, no further loans from the international creditors. Why? Because now the time has come. I am one of that lawmaker who had also sent the letter to worldwide, और मैं आज ये डान में भी है सर, जिसमें 300 lawmakers of the world have asked IMF कि आप गरीब मुल्कों की जो डेट्स हैं उनको राइट ऑफ करें। इन्होंने अभी सिर्फ 25 के किए हैं, लेकिन 6 महीने के लिए। लेकिन मेरी हुकूमत से अपील होगी खासतौर पे बाबर रवान साहब को, इसको कंसिडर करें। दिस इज द राइट एस्टैब्लिश्ड फॉर पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस डिजास्टर पैंडेमिक इन द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड लॉ, इट्स अ पैंडेमिक इज अ डिजास्टर। सेकंड, आपका फोर्स मैजूर लॉ है। फोर्स मैजूर लॉ के मुताबिक अगर कोई नेशनल डिजास्टर है, वर्ल्ड डिजास्टर है और इंटरनेशनली वो डिक्लेयर हो चुका है, तो देन यू एस्टैब्लिश द राइट टू गो टू फर्स्ट IMF। भाई माफी दे, मत नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपने जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया वो इस बेस पे किया कि आपका टैक्स आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। आपका रेवेन्यू जनरेट तो ड्राई हो गया, पहली क्लास आपकी पूरी हो गई। तो अगर वो नहीं मानती तो देन यू हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, गो देयर एंड आस्क फॉर रिटर्न ऑफ लोन्स। क्या करेंगे आप? 20 साल की नहीं तो रिलीफ मांग ले। ये हुकूमत के लिए भी ठीक है, ये अपोजिशन के लिए भी ठीक है, ये पूरे मुल्क के लिए ठीक है। इसलिए कि अगर आज हुकूमत ये 3 रेजोल्यूशन ले लेती है तो 2 रेजोल्यूशन कम से कम लोन्स वाले जो हैं दे कैन यूटिलाइज एट द इंटरनेशनल फोरम्स। इसलिए कि वो कह सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट ने कहा भी हम आपको नहीं दे सकते। चलो 2 मिनट मान ले कि वो नहीं मानते कि हम आपका राइट ऑफ नहीं करते, कम से कम 20 साल की आपको छूट तो मिल जाएगी। और इफ यू रिकॉल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर यहाँ होते तो बड़ी खुशी होती, हम सारे वेलकम करते उनको और समझते हैं कि वो आज फैमिली के सरबराह हैं। और मुझे साहब आप हमारे साथ रहे, बाबर साहब भी हमारे साथ थे, इस वक्त भी यहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर को ले आया करते थे। क्या ही अच्छा होता कि कल जो पॉइंट होता, आज प्राइम मिनिस्टर बैठे होते, काम देख रही होती कि अरे सारे लॉ एनफोर्समेंट बैठे हुए हैं, उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता। लेकिन ये मैसेज उन तक पहुंचा दें कि नाउ इज द टाइम दैट ही शुड इन्वोक दैट सेक्शन ऑफ लॉ इन द लॉ which actually empowers you to do, which is force majeure law. And I have written the letter to him also. Then I have written the letter to all concerned departments. If you recall, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा जी पता नहीं ये ग्रे लिस्ट से हमारा 6 महीने के लिए नाम कैसे चला गया। सेंड द लेटर, मैंने लिखा मैंने ये पैंडेमिक आ चुकी है और जो आपने कंडीशन आप पे लगाई है वो बहुत गलत है। पहले ही आप इंडिया का तो कुछ नहीं कहते, हमारे पे सारा गुस्सा डालते हो। तो उस लेटर का जवाब भी आया, मैंने वो पब्लिक भी किया, तो उन्होंने 5 महीने की छूट दी। Why should we not move forward more? It's a pandemic. They should take us out of the grey list, because I know the LCs are not being opened. We are still under heavy torture of the international financial companies, banks, because they won't open LC unless you get out of this. तो मेरा ख्याल है सर, मेरे ये 3 पॉइंट जो हैं इनको सामने रखते हुए आप आगे जरूर लेके चलिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी आने वाले वक्त में, अभी तो मेरा अभी खराब हो गई है। अगर आप जो इकोनॉमिस्ट हैं, they'll bear me out, sir, that economy is gone down. And imagine down the line 6 months what's going to happen. We are going to suffer more. Now I think Pakistan is one of the luckiest countries जो अपने आप को मेंटेन कर सकता है, because we are agrarian based society, agrarian based country. आज अगर क्या ही अच्छा होता कि प्राइम मिनिस्टर किसानों के लिए पैकेज करते, इस शर्त के साथ
the deputy commissioner of that district will ensure that there is not a single piece which is left out with cultivation, sir. आपके पास इतना अनाज होगा, आपके पास इतनी सब्जियां होगी, फ्रूट होगा कि आप दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, कम से कम आप भूखे नहीं मरेंगे। आगे सर मैं दोबारा आ रहा हूं, लॉकडाउन। आई एम नॉट हियर टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ब्लेम गेम, लेकिन सर लॉकडाउन की जो डेफिनेशन है, अगर उसको आप कन्वर्ट कर लें स्मार्ट लॉकडाउन में भी, उसका भी मतलब ये होता है, एक आप पोर्शन सिलेक्ट कर लें एंड मेक श्योर नोबडी गोज देयर एंड नोबडी कम्स आउट। फॉर एग्जांपल, आज G63 और I-10 have been declared dangerous today in Islamabad in the morning, according to the announcement of the Deputy Commissioner Islamabad. तो ये एक जगह नहीं, सब जगह है। अब देखना क्या है कि आपकी जो टीम है वो कैसे एक जोन क्रिएट करती है और आने वाले वक्त से बचती है। मैं बिल्कुल डिफर करता हूं इस एनालॉजी को कि हमारे सिर्फ 35,000 सिर्फ मरीज हैं। नो, अकॉर्डिंग टू WHO, अगर आपका एक मरीज है तो उसको 28 से मल्टीप्लाई कर दें। सर, रफ कैलकुलेशन which I have discussed with the doctors, as of today you have over 800,000 patients of corona in the country. और शायद अगर ये जो हमने रिपोर्ट बनाई थी, अगर ये प्लेस कर दी होती हाउस में तो बहुत अच्छा होता। इसमें हमने इवन एंटी कोरोना नेशनल एक्शन प्लान दिया और इसको पढ़ लीजिए, कम से कम इसका 60% हुकूमत इस वक्त इंप्लीमेंट कर रही है। आई एम ग्लैड। और इसकी इंप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट रेगुलरली मुझे मिल रही है और जो लास्ट रिपोर्ट है वो परसों आई जो मैंने आपको भेज दी है। विल कंटिन्यू टू वर्क इवन फ्रॉम होम बिकॉज परसुइंग एंड मॉनिटरिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट इज सेनेटर तरीन साहब, अहमद खान, रुबीना खालिद साहिबा, प्लीज सुने मलिक साहब की इतनी अहम बातें हैं। डॉक्टर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, माशाल्लाह जी। सब वक्त ने सब कुछ बता दिया सर, हर चीज सीख ली, बल्कि जेल के भी का चक्कर काट है, वहां के भी डॉक्टरेट कर रहा है। वक्त बहुत कुछ खाता है सर। और मेरा ख्याल है कि आई स्टिल चेरिश माई टाइम इन द FIA, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन मिलती है आपको तो आप देखते हैं यार मैं तो ABC भी नहीं जानता हूँ, क्या करूंगा, फिर वो सीखनी पड़ती है। कोरोना का भी इस तरह ही सीखा और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी एक किताब का दूसरा एडिशन नेक्स्ट महीने आएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अब आगे सर बात के there has been lapses at international level that we are facing today. ये एक वायरस आई थी 1994-95 इन ऑस्ट्रेलिया, उसका नाम था हेंड्रा। हेंड्रा जो थी दैट केम फ्रॉम हॉर्सेस। 14 लोग मरे सर, उन्होंने आइसोलेट करके इसको थोड़ा दबाया, लेकिन आज भी हेंड्रा वायरस से मरीज मर रहे हैं। और अभी जो डॉक्टरों की आई है इन्वेस्टिगेशन, उसके मुताबिक ये कोरोना वायरस की मदर जो वायरस है वो हेंड्रा वायरस है। I wish that WH had taken action and started developing at that of time. Today शायद इसकी वैक्सीन होती। सर, यहाँ पे बात की मुशाहिद अल्लाह साहब ने और दोस्तों ने बात की और उन्होंने कहा कि इस वक्त ब्लेम गेम चल रही है between China and America. I did go in detail, and there are 2 chapters in it about this blame game. And for your information, sir, the first patient appeared in Honolulu in America in September. और यह भी रिकॉर्ड का हिस्सा है दुनिया का। एक टूरिस्ट लोग गए वहां होनोलुलु सर, और जब वो वापस गए तो ताइवान में उनका टेस्ट हुआ, दैट वाज पॉजिटिव सर। So we cannot blame China for this. But at the same time, I would not like to blame any country in the world. That's why I wrote a letter to the Secretary General UN demanding, number 1, the origin of the virus should be determined. It should be detected. Where was first patient, yani 0 patient was found. And then also few other things, total 5 TORs are given, which is part of this book. Finally, Bill Gates is a known personality in the world. उन्होंने 2015 में कहा कि there will be biovirus and this kind of a terrorism may happen
it will kill minimum 10 million people. Then in 2018, he stated in Munich in one of the conferences that there will be genetic change and some modification in virus, and there will be 30 million deaths in the world. So I decided to write a letter to him also. Though it was very polite, I just simply asked him that these are your two statements and you are a credible person. I would like to request you to tell the world, not to me, as to what were the basis that you said कि ये वायरस जो दोनों हैं, और उनकी एक फाउंडेशन है जिस पे काम करती है. In the meantime, आपने सुना होगा nano chip, which was to be injected in bodies, and every human being was supposed to get a special ID under that. उसके जो मॉलिक्यूल से या छोटे जो उसके सेल से वो जाके जिस्म के किसी एक हिस्से पे इकट्ठे हो जाने थे, और that would be determined and work out a chip. So I have requested Bill Gates, either the world was irresponsible or your information was incorrect. So if it has not been done, that means the world did not take you seriously. So I again reminded the Secretary General UN that please take the help of Mr. Bill Gates, because he's done a lot of work on it, and we expect that maybe we get some kind of help from him. Now, sir, दुनिया में हर चीज लॉ से रेगुलेट होती है. हमारी हालत ये है इस वक्त हेल्थ की. आई फुली एग्री विद माय फ्रेंड्स हियर कि टोटल 194 कंट्री में से हमारा नंबर जो है 154 है. हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि हम इस नंबर पे रहते हुए आप कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ सकते? सर, ये 25 फरवरी की बात है. मुझे चीफ मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान ने बुलाया. जी मलिक साहब, बस वाइंड अप भी करें क्योंकि ऑलरेडी 18 मिनट हो गए हैं. सर, मेरी कमेटी ने इतना काम किया, मेरे मेंबर कहेंगे कि हमारे चेयरमैन ने हमारे काम को नहीं कोई नहीं कहेंगे, उनका मैं जिम्मेदार हूं जी. बस वाइंड अप करें. ओके सर, थैंक यू जी. मैं लेकिन एक थोड़ी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ. टेक 2 to 3 मिनट्स. मैं चीफ मिनिस्टर से मिला तो चीफ मिनिस्टर को मैंने कहा कि अभी क्या पोजीशन है यहाँ पे. उन्होंने मुझे सच ये तो नहीं कहा ये कोरोना वायरस पहुंच गया, बट आई डू हैव लिटिल कॉमन सेंस. आई मेड आउट कि ये पहुंच गई है. 25 को आया वापस में, 26 को आके मैंने आपको बताया. मैंने सुओ मोटो लिया सर, और हाजी साहब भी बैठे हुए हमारे पास, इनका इलाका है इस वक्त सुल्तान का जो है, तो इन्होंने भी जाके वहां देखा. मैंने कहा देखो ये मुझे कह रहे हैं कि हमने वहां पे आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं. तो वेरी काइंडली ही टोल्ड अस द होल कमेटी कि वहां पे तंबू लगे हुए हैं और उनमें तकिए और उसमें शीशा पड़ा हुआ है. आई एम सॉरी टू से. इन फैक्ट आई थिंक कि जब ये वबा आई या ये स्काई लैब आया, ना हुकूमत तैयार थी, ना डॉक्टर तैयार थे, ना दूसरी सर्विसेज वाले तैयार थे. लिहाजा मैंने कहा कि आप जो इसकी हैंडलिंग है एंट्री पॉइंट पे, वो आर्मी मेडिकल कोर को दे दें ताकि आप उसको हैंडल कर सके. हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है, और मेरा ख्याल अगर वो हो जाता वक्त पे बहुत अच्छा था. बहरहाल मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. इस दवा के साथ थैंक यू मलिक साहब, आपने बड़ा अच्छा काम किया. अपना रिपोर्ट बाकी मेंबरान को भी भिजवा दें. बिल्कुल, इस दवा के साथ कि अल्लाह मियां हमें अपनी रहमत से आमीन नवाजे और इस दुनिया से ये वायरस खत्म हो. और क्योंकि आज हमारे सेक्रेटरी सेनेट का भी लास्ट डे है, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिज वर्क विद अस. I think no more next time he'll be going to a better place. Whereas you did good work with us, sir. We appreciate your work on record. और सर, इस जो मैंने रिपोर्ट दी है, I would like to request you सर कि ये सबको भिजवा दें. और मेरी जो रिकमेंडेशन है, और ये कहना कि कोई नेशनल एक्शन प्लान नहीं हुआ, no. Our committee gave 37 anti-corona national action plan. और दूसरा जो बिलावल भुट्टो साहब ने एक तजवीज दी है, आए बैठे मिलकर काम करें. उसको आप गुड फेथ में लें, आप उसको लड़ाई झगड़े में न लें. आप यकीन करें 6 महीने के बाद आप बैक कर रहे होंगे कि ये करें, तो क्यों ना आज इज्जत के साथ मिलकर यूनिटी के साथ ये साबित करें दुनिया को कि वी आर अ नेशन एंड वी वांट टू वर्क टुगेदर. अगर कोई मैंने सख्त बात की हो किसी के लिए